ایک ایسی ہندو عورت جس نے سورہ فاتحہ کو پورے عقیدے کے ساتھ پڑھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ اور بالکل اس ہندو عورت نے بھی ایسا ہی ایک عمل کیا اور پھر وہ معجزہ رونما ہو گیا کہ جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں چکنا چوند ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سورہ فاتحہ کے ایک معجزے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا، جہاں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ وہاں ایک ہندو عورت اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کے ارد گرد جنگل جیسا علاقہ تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کے شوہر کا مرچوں کا کاروبار تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر بہت اچھا کاروبار چلا رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی تو وہاں جن لوگوں کو اسے سامان پہنچانا تھا وہ لوگ مسلمان تھے۔ شوہر ایک دکان پر سامان پہنچانے گیا اور بیوی کو دوسری دکان پر سامان دے کر روانہ کیا۔ جب بیوی اس دکان میں پہنچی تو وہاں کا مالک اونچی آواز میں کچھ الگ سی چیز پڑھ رہا تھا جو کہ اس ہندو عورت کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ ہندو عورت نے پوچھا کہ شاید وہ کوئی جادو منتر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہوگی۔ ہندو عورت نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو اور اسے پڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، جس پر اس مسلمان آدمی نے اسے بتایا کہ جو سورہ فاتحہ ہے جو مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سی موذی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پڑھنے سے دل کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہندو عورت ایک چھوٹی سی سورت کے اتنے بے شمار فوائد سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس سورت کو سیکھ لوں اور اسے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھنا شروع کروں، تو میں اور میرا شوہر بھی مزید ترقی حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ دکاندار جن کو وہ اپنا مال دینے آئی ہے بہت زیادہ ترقی والے دکاندار تھے۔ اس دکاندار نے اس عورت کو سورہ فاتحہ کے بہت سے معجزوں کے بارے میں بھی بتایا، اور مسلمان دکاندار نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ وہ ہندو عورت دکاندار کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے دکاندار کو کہا کہ اب مجھے بھی اس صورت کو سکھا دیں تو میں بھی اسے پڑھا کروں گی۔ دکاندار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس عورت کو سورہ فاتحہ کی 2 لائن یاد کروا دی اور کہا کہ انہیں پکا کر لو، پھر تم جب دوبارہ آؤگی تو میں تمہیں باقی کی یاد کرا دوں گا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر آ رہا ہے تو وہ دکاندار سے کہا کہ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے اسلام کے نام سے نفرت ہے، اور وہ ویسے کسی عمل کو مجھے نہیں کرنے دے گا کہ جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو۔ یہ سن کر دکاندار نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس بارے میں تمہارے شوہر سے کچھ بات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس ہندو عورت کو تسلی ہو گئی اور وہ 2 لائنیں یاد کر کے چلی گئی۔ واپس جانے کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ لائنیں پکی کرنے لگی کہ کہیں وہ ان کو بھول نہ جائے، اور وہ ہر وقت دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کی وہ 2 شروع کی لائنیں پڑھتی جاتی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسے یہ 2 لائنیں پکی یاد ہو گئی تھیں۔ جب اس کے شوہر نے دوبارہ مال پہنچانے کے لیے اسے ساتھ چلنے کا کہا، یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی اپنے شوہر کے ساتھ مال پہنچانے کے لیے نکلی۔ جب وہ اسی دکاندار کے پاس پہنچی تو اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ آج اسے پہلی پوری سورت یاد کروا دے۔ وہ مسلمان دکاندار بھی جیسے اس عورت کا ہی منتظر تھا، اس نے فوراً اس ہندو عورت کو پوری سورت یاد کروا دی۔ عورت بہت ذہین تھی، اس نے فوراً ہی پوری سورت یاد کر لی۔
अब वो दिल ही दिल में पूरी सूरह फातिहा को दोहराती रहती और सच में थोड़े ही दिनों में उसके शौहर के कारोबार में इतनी बरकत हुई कि उसका शौहर हैरान रह गया कि उसके शौहर ने बहुत दफ़ा ये बात नोट की थी कि वो औरत मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ती होती थी। और उसने अपनी बीवी से पूछा कि तू क्या पढ़ती है, क्या तूने कोई जादू सीख लिया है कि जिससे कारोबार में भी तरक्की हो गई है। तो उसकी बीवी ने फौरन कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ती, मैं क्या पढ़ूंगी भला। उसे पता था कि अगर वो अपने शोहर को सूरह फातिहा के बारे में बताएगी तो उसका शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि उसके शोहर को तो मुसलमानों से शदीद नफरत थी। खुदा ने जिस तरह सूरह फातिहा को उसके दिल में बैठा दिया था, बिल्कुल इसी तरह खुदा अब उस सूरह फातिहा के मौजज़ात भी दिखा रहा था। उसके शोहर के कारोबार ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ली थी। इस औरत के जिस्म में अक्सर दर्द रहता था और वो हैरान थी कि जब से उसने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की थी उसका दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अब उससे इस दर्द की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन खुदा को अभी इस औरत को सूरह फातिहा का और मौजज़ा दिखाना बाकी था, ताकि उससे यकीन आ जाए कि वाकई ये एक सच्चा कलाम है जिसे अल्लाह ने अपने नबी पर लोगों की रहनुमाई और भलाई के लिए उतारा है। एक दिन वो औरत अपने शौहर के साथ काम में मसरूफ़ थी जब उसका बेटा खेलते खेलते गांव से बाहर के हिस्से में चला गया। जंगली झाड़ियाँ और दरख्त मौजूद थे और इस बेचारे लड़के को एक जहरीले बिच्छू ने डंग मार दिया। देखते ही देखते लड़के का जिस्म नीला होना शुरू हो गया। जैसे ही लड़के के माँ बाप को पता चला तो उन्होंने फ़ौरन हर तरह का इलाज किया, लेकिन सभी डॉक्टरों, तबीबों और हकीमों ने साफ ये कहकर मना कर दिया कि बिच्छू का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। अब ये लड़का सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है और इसके लिए कोई इलाज मुमकिन नहीं। इस हिंदू औरत का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और हर किसी ने कह दिया था कि अब इस बच्चे का बचना मुमकिन नहीं है। उसका शौहर रोते रोते अपनी मूर्तियों के आगे घुटनों के बल बैठ गया था और अपने देवी देवताओं से बेटे की जिंदगी की फरियाद कर रहा था। अचानक से इस औरत के दिल में खुदा ने ये बात डाल दी थी कि वह सूरह फातिहा को पढ़कर अपने बेटे पर फूंक दे तो शायद उसका बेटा ठीक हो जाए। ये ख्याल आते ही इस औरत ने जल्दी से सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया और कई दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसे यकीन के साथ इस औरत ने अपने बेटे पर एक फूंक दी। और कुछ देर बाद ये देखकर दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए कि इनके बेटे के जिस्म का रंग ठीक होने लगा था और थोड़ी ही देर बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया था। अल्लाह के हुक्म से इस औरत ने सूरह फातिहा का जीता जागता मौजज़ा देख लिया था और उसका ईमान इस बात पर पुख्ता हो गया था कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। औरत का शौहर ये जान गया था कि उसकी बीवी कोई जादू मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जे के कारोबार में तरक्की हुई बल्कि आज उनका बेटा मौत के मुंह से भी वापस आ चुका था। उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे भी बता दो कि तुम क्या पढ़ती हो, जिस पर इस हिंदू औरत ने रोते रोते अपने शौहर को बताया कि उसे एक मुसलमान दुकानदार ने ये सूरत सिखाई थी जिसे पढ़ने की वजह से ना सिर्फ जे के कारोबार में तरक्की हुई बल्कि मेरे जिस्म का तमाम दर्द भी ख़त्म हो गया और आज हमारा बेटा भी ज़िंदगी में लौट आया है। जिस सुनते ही उसका शौहर खुश होने के बजाय इस हिंदू औरत पर गुस्सा होने लगा। उससे जितनी शदीद नफरत मुसलमानों से थी इस वक्त उसे उतनी ही नफरत अपनी बीवी से महसूस हुई, क्योंकि वो इस्लाम का अमल कर रही थी। लिहाजा उसने अपनी बीवी को गुस्से में मारना शुरू कर दिया। हिंदू औरत ने अपने शौहर से कहा कि तू कैसा बदबख्त इंसान है जो अपने बेटे की जान बच जाने पर भी शुक्र अदा करने के बजाय इस्लाम से बुग़्ज़ की वजह से मुझे मार रहा है। तो उस कलाम को बुरा कह रहा है जिससे तेरे बेटे के जिस्म का जहर ख़त्म हो गया। और जिन मुसलमानों से तू नफरत करता है आज उन्हीं की सिखाई दुआ की वजह से मेरा बेटा जिंदा बच गया है। जिस सुनकर तो उसके शौहर को और भी गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे मारता रहा। वो आदमी इस बात से डर गया था कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो उसकी बीवी मुसलमानों के तर्ज अमल को अपना रही है तो पूरा गांव इन दोनों मियाँ बीवी को जला देगा। इसलिए अब उसने अपनी बीवी को कमरे में ही बंद रहने दिया और जब भी उसे गुस्सा आता तो वो अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने रोते रोते सूरह फातिहा पढ़ी और खुदा से दुआ की कि इसे इस मुश्किल से निजात दिलाए। खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और उसने फिर सूरह फातिहा को एक और मौजज़ा दिखाया और वो हिंदू आदमी अपने एक पुराने दोस्त को माल पहुंचाने के लिए दूसरे गांव जा रहा था कि रास्ते में इस हिंदू आदमी को एक जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया और वो आदमी तड़प तड़प कर मौका पर ही दम तोड़ गया।
बिच्छू इतना जहरीला था कि आदमी का रंग स्याह पड़ गया था और वो पहचाना तक नहीं जा रहा था। अब वो हिंदू औरत बेवा हो चुकी थी और इनके समाज में बेवाओं को बहुत बुरा समझा जाता था। देखते ही देखते इस आदमी का कारोबार भी खत्म हो गया, क्योंकि वो औरत बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और उसका बेटा तो अभी सिर्फ 10 साल का ही था। उस औरत के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके थे और नौबत फाकों तक पहुंच गई थी कि इस औरत ने एक दफ़ा फिर सूरह फातिहा को अपना मामूल बना लिया। इस औरत को अब सूरह फातिहा पर इतना पक्का यकीन था कि उस सूरत में ज़रूर कोई जादू है जो हर मुश्किल को हल कर देती है। एक दफ़ा फिर इस औरत ने देख लिया कि सूरह फातिहा के पढ़ने से कैसे उसके बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। उसका शौहर अपने जिस दोस्त को माल पहुंचाने जा रहा था, जब उसके दोस्त को पता चला कि बिच्छू के काटने से इस औरत का शौहर हलाक हो गया है, तो वो फौरन इस औरत के पास आया ताकि इस हिंदू औरत के हालात जान सके। और जब उस आदमी ने देखा कि इसके दोस्त की बीवी तो बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रही है, तो उसने हिंदू औरत से कहा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे कारोबार को दोबारा खड़ा करता हूँ और इसके बाद तुम अपने बेटे के साथ मिलकर इस कारोबार को संभाल लेना। और वो आदमी कुछ दिन औरत के साथ ही गाँव में रुक गया। उस आदमी ने कुछ ही दिनों में ये देख लिया कि जो हिंदू औरत काम करते करते मुस्तकिल कुछ न कुछ पढ़ रही होती थी। उस आदमी से रहा ना गया और उसने हिंदू औरत से पूछ लिया कि तुम क्या पढ़ती हो। उस औरत के दिल में डर बैठ चुका था, क्योंकि उसके शौहर ने उसे बहुत मारा पीटा था, इसलिए उसने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उसके दोस्त ने बार बार असरार किया तो उस औरत ने बता दिया कि वो एक सूरत पढ़ती थी। इसका नाम सूरह फातिहा है, जो इसे एक मुसलमान दुकानदार ने सिखाई थी और जिसके फ़ज़ाइल इतने हैं कि उसने अपने मरते हुए बेटे को भी जिंदा होते देख लिया। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे भी ये सूरत सिखा दो। और फिर वो दोनों काम करते हुए इस सूरत की तलावत करते थे। एक दिन वो आदमी इस हिंदू औरत से, मेरे दिल में एक बात है कि अगर एक सूरत के पढ़ने से हमें इतने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और दिल को इतना सुकून मिल रहा है, तो सोचो कि अगर हम मुसलमानों के इस पूरे कलाम को सीख लें तो कैसा रहेगा। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी कि वो भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अपने शौहर और समाज के खौफ से कभी ये बात कह ना सकी। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि अब जब हम माल पहुंचाने इस मुसलमान दुकानदार के पास जाएंगे तो इससे इस कलाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद वो दोनों माल पहुंचाने इस मुसलमान दुकानदार के पास गए और उससे सूरह फातिहा का तर्जुमा भी सीख लिया और कुरान पाक के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हुए उसे सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ये सुनकर वो दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने खुद इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा के साथ कलाम पाक सिखाना शुरू किया। जैसे जैसे इन दोनों ने कुरान करीम को सीखना शुरू किया तो अल्लाह ने इनके दिलों पर लगी मोहर को हटा दिया और ये दोनों इस्लाम की अजमत पर ईमान लाते हुए मुसलमान हो गए। मुसलमान होते ही उस मर्द को एहसास हुआ कि अब उसका एक ऐसी औरत के साथ रहना ठीक नहीं जो उसके लिए नामहरम है, क्योंकि वो ये बात जान गया था कि इस्लाम में एक गैर मर्द और गैर औरत का साथ रहना जायज़ नहीं समझा जाता है और ये गुनाह की बात है। इसलिए उसने इस औरत को शादी करने के लिए पैगाम दिया और उस औरत ने भी खुशी खुशी इस मर्द के साथ शादी कर ली, क्योंकि उस मर्द ने उसे इतनी हिम्मत दी थी कि वो समाज के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर पाई थी। उन दोनों ने शादी कर ली। अब वो दोनों मिलकर दीन इस्लाम को मुकम्मल तरीके से सीख रहे थे। अल्लाह जिसके दिल में चाहे दीन के लिए मोहब्बत डाल दे और जिसके दिल पर चाहे मोहर लगा दे। अल्लाह ने उस औरत को दीन के लिए चुन लिया था और उसके दिल पर लगी मोहर हट गई थी, जबकि उसके पहले शौहर ने सूरह फातिहा के जिंदा मौजज़ात को देखने के बावजूद भी उसकी हकीकत से इनकार किया था। उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ और अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ नाज़िबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी और उसका अंजाम बहुत अबरतनाक हुआ था। नमाज में इस सूरह फातिहा की क़िरात फ़र्ज़ है और ये इसका ज़रूरी रुकन है, जिसके तर्क से नमाज बातिल हो जाती है। तमाम कुरान में से सिर्फ इस सूरत को नमाज में बतौर रुकन के मुकर्रर किया गया है और बाकी क़िरात के लिए इख्तियार दिया गया है कि जहाँ से चाहो पढ़ लो। इसकी वजह ये कि सूरह फातिहा पढ़ने में आसान, मजमून में जामिया और सारे कुरान का खुलासा और सवाब में सारे कुरान के ख़त्म के बराबर है। इस सूरत में अल्लाह की सिफ़ात हैं और इसको अल-शफ़ा और रकिया भी कहा जाता है। हदीस मुबारक में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शफ़ा है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में
ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورہ سے دم جھاڑا گیا تھا تو اس سے شفا ہو گئی تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔